can just wait. Yeah, live stream के लिए wait कर लेते हैं. Yeah. So we're waiting for somebody to live stream. Shubham, is it okay? Yeah, please, you carry on. I'll do it. Okay. I'm doing it. ठीक है. नमस्ते सभी को. आप सबका स्वागत है इस चर्चा में जो जन आवाज और विकल्प संगम ने साथ में आयोजित की है. Jan Awaaz is a platform created in the year 2015 where they promote an understanding that democracy must protect pluralism and diversity. And the platform has been forging alliances of a collective ethos of equality and justice that are based on concerned and affected people's expertise in almost every area of public life. Or Vikalp Sangam is an evolving process that involves in its core functioning over 90 movements and organizations in India. जो विकल्प संगम है वो 2014 में शुरू हुआ था, जो grassroots organizations के साथ काम करता है, जो विकल्पिक processes, solutions पे काम कर रहे हैं. जी कोई कुछ बोल रहा है? No, please continue. और ये चर्चा हो रही है with our speakers जिन्हें मैं introduce करूंगी. So we have Nikhil Dave ji. He is a renowned social activist and founder member Mazdoor Kisan Shakti Sangathan. He's also a convener of NCPRI and associated with Sushan Evam Rozgar Adhikar Abhiyan and has been working on labor rights since the early 80s. And he's had a crucial role in the struggle for and shaping the right to information law. We have Rakshita Swamiji, who is a public policy practitioner with over 13 years of experience in conceptualizing, demonstrating, and institutionalizing mechanisms of social accountability in the delivery of schemes and functioning of public institutions at the intersection of government and civil society organizations. वो founder and head है of Social Accountability Fund for Action and Research, where अपने टीम के साथ वो she's building a rule-based public accountability frameworks in collaboration with governments and civil society organizations. We also have Professor Babu Matthews Ji, who is former registrar and faculty at NLSIU. He was also part of the trade union movement and various other social movements taking up issues of bonded labor, child labor, displacement, and destruction of the livelihoods of the marginalized. He combined the teaching and practice of human rights, and during the last 6 years, he served as country director of ActionAid International in India. In this capacity, he was in charge of evolving a rights-based policy and implementing a human rights agenda with special focus on economic, social, and cultural rights in 25 states of India. We also have Janki Srinivasan Ji. She holds a PhD in Information Management and Systems from UC Berkeley and a master's degree in Physics and in Information Technology from IIT Delhi and IIT Bangalore. You can't talk from here. Sorry? No, nothing. You just tell me. Okay, I'll continue. There was some disturbance. One of Janki Ji's research interests is in how digital technologies have reshaped work, including gig work. She's a co-investigator on the Fair Work India project, which is part of the global Fair Work network that publishes rankings of gig work platforms and hopes to shape a fairer future work for all. We also have Sheikh Salahuddin Ji, and he's worked with app-based ride-hailing and sharing companies since 2012 and has been a driver organizer in Hyderabad since 2014. He's the National General Secretary of India Federation App-Based Transport Workers. And in 2014, he founded the Telangana Four-Wheeler Drivers Association. In 2016, he also established the Telangana State Taxi and Drivers Joint Action Commission. And they've also organized camps to file income tax returns and health camps for drivers and
delivery workers. And lastly, we have Ashish Singh Ji, who is from Rajasthan and belongs to the Gig and App-based Workers Union, and also a School for Democracy Fellow, working with gig workers of Rajasthan for some time now. And I'd also like to now invite Rakshita Ji, who's going to be moderating this discussion, this charcha for us. Thank you. थैंक यू अरनाज एंड ये हमारे साथ काफी होता है कि जब हम बहुत एक जूम मीटिंग लिंक्स काफी व्यापक तरीके से फैलते हैं वी हैड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वेयर बॉट्स हैव टेकन ओवर वी हैव random things happening of people coming going leaving chats, so we are also requesting School for Democracy and Vikalp Sangam कि please वो उस टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा प्लीज आप मॉडरेट करते रहिए क्योंकि लास्ट टाइम भी दिक्कतें हुई थी किन्हीं और चीजों में, तो इस बार भी मॉडरेट करते रहे बिकॉज it's happened in the past and we don't want this to happen again. Thank you. Welcome to this very important conversation or development related to the welfare of gig platform workers. और ये आज की चर्चा राजस्थान में गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और वेलफेयर के लिए एक कानून पास किया गया है, उसके ऊपर आज ये चर्चा है। और इस कानून का क्या कैंपेन का बैकग्राउंड था, किन मुद्दों पे एक ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल एक डिस्कोर्स बनाने का क्या जरिया रहा था, and finally what is the law that has got passed, what are its strengths, what are its limitations, which is also why we have amongst us a wide range of people who are looking at the issues of rights of gig platform workers from very multiple perspectives. So I will request each speaker to come one by one. At first, I'll invite Nikhil from Mazdoor Kisan Shakti Sangathan and SR Abhiyan. वो बोले and then move to this. Thank you, रक्षिता. Thank you सारे लोग. Thank you जनाबाज इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और सारे जो आए हैं. मैं बहुत ब्रीफली शुरू में बोलना चाहता हूँ और बाद में शायद बातचीत में और शामिल होऊंगा. मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ. थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी में बोलूंगा लेकिन ज्यादातर हिंदी में बोलूंगा. कि राजस्थान में जो हुआ है एक तरीके से हम लोगों के बहुत अनुभव हुए हैं. कानून की मांग करना, कानून बनवाना एक बहुत ही अजीबो गरीब फिनोमेना जैसे हुआ है, क्योंकि इसकी मांग उठने से लेके कानून बनने तक बहुत एक ड्रीम रन होगा. उसको मानेंगे कि हमने ये कई बार सोचा कि इसके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन ये किसी सूरत में ड्रीम कानून नहीं. ऐसा नहीं समझ जाए कि हम लोगों का मानना है कि ये कानून सब कुछ दे देगा. गिग वर्कर्स, गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के पास कुछ भी जरिया नहीं था, ना राजस्थान में और जहां हमें समझ में आ रहा था दूसरी जगह, जहां ये कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, इज्जत से अपने हक मांग सकते थे और उसका एक जरिया ढूंढा गया. तो ब्रेक थ्रू जरूर है. एक बड़ा एक दरवाजे में एक पांव रखने की जगह मिली या एक कमरे के अंदर पांव रखने की जगह मिली, उससे ज्यादा तो और बहुत कुछ आगे करना पड़ेगा. तो एक शुरुआती कदम है और उस शुरुआती कदम में बहुत लोगों का साथ हुआ, हाथ रहा, मदद हुई. और मेरे ख्याल में अब एक मौका हमें समझ में आया, क्योंकि हमें मालूम है जो लोग इसमें लगे हुए थे कि बहुत इसका विरोध भी, बहुत पावरफुल विरोध चुपचाप भी होते रहा. अभी भी रूल्स नहीं बने हैं और रूल्स बनाने की प्रक्रिया में भी लोगों की मदद चाहिए होगी. लेकिन सबसे ज्यादा मदद चाहिए होगी कि गिग वर्कर्स, हमारा जो बेस हो गिग वर्कर्स को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए. हमारे साथी लोग हैं, ये आज बोलेंगे भी, लेकिन आगे इस बेस को ताकतवर बनाना और इस बोर्ड के माध्यम से और मंच खुलवाना, ताकि मंच खुले जितना जहां तक संभव है. मेरे ख्याल में इस शुरुआती दौर में मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, जो हमने लिख के भी कहा है, कि इस पूरे सोच में एक सोच था, उसके बारे में लोगों के कुछ विरोधी सोच भी हैं, विपरीत सोच भी हैं,
वो भी मेरे ख्याल में एक बहुत लेजिटिमेट सोच है। हम भी हमारी बात रख रहे हैं, हमें लगा कि ये एक मौका है, हम मौका में जाएंगे। ऐप भी बात कर रहे थे, लेकिन ऐप से आगे जाके ये ऐसे बोर्ड बने। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था हमारे हिसाब से कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर एक फी लगा, और वो अंत में कानून में आया। वो हमने एक बड़ी जीत मानी, क्योंकि उसके वजह से हम लोगों को ट्रांजैक्शंस देखने का, ट्रांजैक्शंस के ऊपर बात करने का वो भी जरिया मिला। और ये पूरा सोच हमने पुणे में और महाराष्ट्र में हमालों के पूरे हमाल माथाड़ी कानून से लिया, उनको एक्नॉलेज करना है। और लेबर मूवमेंट में मेरे ख्याल में है कि पिछले लेबर की लड़ाइयों को एक्नॉलेज करना है। और इसमें संभावनाएं आगे है, मैं और बात करूंगा कि अब यही मॉडल बीओसीडब्ल्यू में आए तो मेरे हिसाब से और सुधार होगा। लेकिन हमें देखना पड़ेगा ये कैसे काम करे। मैं और लंबा बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। मैं देख रहा हूं कितने लोग इसमें भी जुड़े हैं, और देख रहा हूं कितने लोगों ने बात की। राजस्थान में, भारत में, देश में एक इवेंट हमारा हो रहा है 11 तारीख को, और उसके साथ मैं एंड करूंगा, जिसमें लोक कलाकार, गिग वर्कर्स और स्ट्रीट वेंडर्स, जयपुर में आप सब सादर आमंत्रित हैं। इस बातचीत में मेरे ख्याल में जो लोगों का सोच है वो आए, जिनको क्या ठीक लगता है वो बोले, जो ठीक नहीं लगता है वो भी हम बात आपस में करें। बिल्कुल एक ऐसा मंच हो। थैंक यू इसको क्रिएट करने के लिए और करने के लिए, और आगे के काम में मदद करें, ये हम जरूर कहेंगे। क्योंकि एसआर अजभियन इसने बहुत बड़ा रोल अपनाया, कुछ गिग वर्कर्स के साथ गिग वर्कर्स ने भी किया, सबने मिलके जितना उनसे हो सकता था करे, लेकिन हम अकेले बिल्कुल नहीं कर सकते। थैंक यू रक्षित। Thank you. Again, before starting the meeting, just house rules क्योंकि काफी हो रहा है chaotic. I just want to request जो भी इस Zoom call पे जुड़ा है, प्लीज अपने नाम और ऑर्गेनाइजेशन के टाइटल के साथ जुड़े, वरना द एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रिमूविंग certain names because हम पहचान में आए हैं कि they are bots. Thank you. And before we get on to hearing from a wonderful panel, मैं थोड़ा 5 मिनट लेना चाहती थी राजस्थान के जो कानून के 4-5 सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन देने के लिए, ताकि हमारे साथ जो भी साथी जुड़े हैं वो समझ पाए कि कानून का मोटा मोटा दायरा क्या रहा है। पहला चीज ये कानून कहता है कि गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जो भी लोग किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ काम करते हैं, एंड प्लेटफॉर्म और एग्रीगेटर जब हम कहते हैं, हम समझ रहे हैं जोमेटो, स्विगी, अर्बन कंपनी, उबर, ओला, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन डिलीवरी, पोर्टर, इन सारे एग्रीगेटर्स जैसे जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्रीगेटर के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करता है काम करने के लिए या करती है, तो उनका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए राज्य सरकार के साथ। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल टू से कि सरकार को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पता होना चाहिए कि उनके राज्य में कितने गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स काम कर रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं। आज तक, फॉर इंस्टेंस, neither does government of India, neither does government of Rajasthan have a total number, and estimates आ रहे हैं, नीति आयोग के ब्रीफिंग पेपर्स आते हैं जो एस्टिमेट करते हैं कितने लोग हैं, लेकिन एक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव संख्या नहीं है। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लॉ व्हिच सेज देयर इज एन ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन। द सेकंड, जिसकी जिक्र निखिल जी ने बहुत ब्रीफली की थी, कि इसका पूरा मसौदा ये है कि गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के काम के आधार पे सोशल सिक्योरिटी उनको मिले। और ये सोशल सिक्योरिटी कहाँ से मिले? ये उन्हीं के हर ट्रांजैक्शन से। So every transaction that takes place on a platform, whether if I take a taxi from my home to the airport, if I order a meal from a restaurant to my house, जो टोटल बिल बनता है कस्टमर का, उस बिल में एक वेलफेयर सेस फी डिडक्ट होगा। उसको बहुत ही लूज टर्म्स में आप टैक्स मान सकते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में वो एक सेस फी है और टैक्स नहीं है, उसके मैं डिटेल्स में नहीं जा रही, पर एक परसेंटेज ऐड होगा उस टोटल बिल का, which will be the amount that is dedicated towards the social security fund
for all gig platform workers that will be working in the state. तो ये जो कोष जमा होगा इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन से, इसी के आधार पे एक स्टेट लेवल पे एक फंड बनेगा. And this we must, like was already acknowledged, we must acknowledge that this is the legacy and contribution of the Mathadi law and the Hamal movement that showed us the way that social security of workers has to be generated from the work itself, कि लोग अपनी ही मजदूरी से, अपनी ही काम से अपना सोशल सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं, और हम किसी भी सरकारी एलोकेशन पे निर्भर नहीं है और ना ही किसी एग्रीगेटर के चैरिटी पर. So that's the second unique element of this law, which mandates a welfare cess fee as a percentage of every transaction that is generated in the platform economy. तीसरा ये कहता है एक त्रिपक्षीय बोर्ड होगा राजस्थान में. जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, वैसे ही एक त्रिपक्षीय बोर्ड होगा जिसमें एग्रीगेटर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और वर्कर्स एंड वर्कर यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे. और ये बोर्ड तय करेगा कि कितना वेलफेयर सेस फी डिडक्ट किया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स किस तरीके के होंगे, पेंशन, मेडिकल, एजुकेशन वगैरह, एंड उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा. तो ये डिसीजन मेकिंग का पूरा अथॉरिटी एंड पावर इस बोर्ड के पास रहेगा, जिसमें सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू रिप्रेजेंट किए जाएंगे. ये कानून का तीसरा भाग है. चौथा भाग ये कहता है कि हर आज के दौर में वी नो दैट देयर इज एन इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज जनरेटेड through the gig platform workers identities and through the work that they are contributing to, और अनेक प्रकार के डेटा पॉइंट्स आ रहे, जनरेट हो रहे हैं. ये कानून कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का एक यूनिक आईडी होगा और हर एक ट्रांजैक्शन का ब्रेकअप, कि कितना अमाउंट एग्रीगेटर को गया, कितना वर्कर को गया, कितना जीएसटी या टैक्स में गया और कितना वेलफेयर सेस फी में गया, इसका ब्रेकअप बोर्ड और सरकार देख पाएगी. which is the only way that the board and government can actually ensure कि हर ट्रांजैक्शन पे वेलफेयर सेस फी कट रहा है और हर प्लेटफॉर्म में ये प्रोसेस चल रहा है. So this idea of having a transaction management information system which is mapping every transaction in the platform economy. और ये भी बहुत जरूरी बात है कि while we are having this conversation, न्यूज में भी अभी हमें पता चला है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हो गया है लोकसभा में. तो उस प्रकार का जो एक वार रहेगा where there will be big tech and state will have access to data, are we looking at possibilities where state laws like Rajasthan will actually give a chance for people to also engage in this process of data identification and using data for the larger public good? So is this an important counter to what we're seeing happening at the national level? ये चौथा है. एंड आखिरी एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस लॉ, ये पहला सबमिशन है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल है गिग वर्कर्स के प्रति. मेरे बाद जो बाकी के स्पीकर्स हैं बहुत खूबी से दर्शाएंगे कि गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के इतने मल्टीपल तरीकों से एक्सप्लॉयटेशन होता है और दिक्कतें होती है, और ये बिल्कुल नहीं है कि ये कानून सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा. But at least the acknowledgement of a state government that the state government is responsible to hear grievances of gig platform workers, redress them within a stipulated time frame, और एक appellate mechanism बिठाना. ये दिखाता है कि पहली बार gig platform workers को सरकार कह रही है कि हमारी जिम्मेदारी है आपकी सुनने की और आपके शिकायतों का निस्तारण करने की. So I just wanted to lay down the basics of the law, on the basis of which many people and everybody who's going to speak after are not just experts speaking on this issue. I must also say have really given a lot of their effort, support and contribution to the Rajasthan law getting passed. And we can see it's a collective effort. So it's also an opportunity to thank all of the co-panelists for being not just speaking on this as experts, but actually being part of a campaign and helped bring pieces of this law together. तो इसके बाद मैं प्रोफेसर बाबू मैथ्यू से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात रखे on why he thinks this is an important legal development and what
this is going to, what kind of a path this paves for future efforts. And Professor Matthew, please feel free to speak in English and I can do a summary translation. Thank you. Thank you. At the outset, my congratulations to the Rajasthan team for achieving this breakthrough so far as gig and platform workers is concerned. I must also congratulate the Chief Minister of Rajasthan, Shri Gehlot, because we have been following the initiative from the time of his budget speech. And, we were watching with crossed fingers whether it will actually materialize into a law. This law joins the cluster of good laws initiated by civil society organizations. I have in mind Right to Information, National Food Security Act, NREGA, Right to Education, Forest Rights. So in a sense, this joins, that cluster of laws where civil society has made significant contribution. And I think it represents a breakthrough from that point of view, along with a sister law also from Rajasthan, which gives urban employment guarantee for 125 days. During the period of neoliberalism, what we have been watching is government's role in snatching away the rights that existed. So in that sense also, this is a rare instance of a right being vested in favor of gig and platform workers. Yes, as Rakshita was saying, I think the incorporation of tripartitism is a very important aspect during a period when many people in power like to forget about it. I think this is an occasion for us to remember that ILO's convention number 144 deals with tripartitism, and India has ratified that convention. And very early, Dr. Ambedkar, as early as 1942, brought it into practice in India in the sense that the Indian Labour Conference, was given new life by bringing workers' participation into that forum. So it's, by this law, you're carrying forward that very healthy tradition. As again, Rakshita pointed out, I think this creation of a welfare board is a very important thing. We in South India have been witnessing the different mechanisms by which welfare boards are sought to be paralyzed. Tamil Nadu and Kerala have had welfare boards in different sectoral occupations, and they also had some cess arrangement. In preparation for the GST, various cess-related laws were repealed, and so we are going through a period when it appears as if Government of India is unable to tolerate welfare boards at the state level, and therefore, preventing them from having the resources for it. So in that context also, creating a welfare board of this nature is a very welcome feature, not only for gig and platform, but for other segments of the unorganized labor. And I think at the heart of this law, I would also, especially welcome this feature of automatic registration, that all platform workers will be registered by the aggregators. I think that's important. As I said earlier, not only for gig and platform, this must become a universal rule. And, in contrast to the e-Shram, we must have a mechanism by which we have a registration process that is easily accessible. And some of us feel in future, we must have it at the district level. There should be a deputy labor commissioner who will bring on record all informal sector workers, because that is the beginning of trying to protect some of their rights. So compelling the aggregators to share their database with the welfare board is again an extremely welcome idea. And even more than that, in a sense, complementary, of course, is the process by which the welfare fund is to be created.
collecting the cess not exceeding 2% maybe, but based on the value of each transaction related on the platform. That is a brilliant proposal. We are also drafting a law on gig and platform workers, and we have happily borrowed this idea from the Rajasthan experience, because that I think is great. I also noticed in the law that rights of registered platform-based gig workers is protected. It's a rights-based approach, and we take note of the right to a general social security, a specific social security, and then also to be heard in respect of grievances by an authorized officer, and that such an officer can give a direction for appropriate compensation subject to an appeal. And finally, and even more important, the right of gig workers to be participants in all decision-making processes regarding their welfare. I am conscious of the limitations of time, and so let me conclude by saying, this central transaction information and management system is another brilliant innovation. And that is to be administered by and monitored by the board on every payment, on the breakup of commission, on the payment to workers, on the GST, and on the welfare cess collected. This is a pragmatic realization of transparency and accountability. And when people ask, how do you ensure whether a law will be enacted, it depends on provisions like this that make a difference. And I think from the point of view of implementation, many of our laws fall back on criminal law. I am so happy to note the absence of criminal law. You're not thinking of, how many days somebody should be put in prison. Instead, you have said, in case of non-payment of welfare cess or non-payment of fee, of fine, and fine which may vary from 10,000 to up to 50 lakhs. So that kind of fine, if it is not paid, the provision that recovery will be done as an arrear of land revenue. That is a very brilliant move. That's the best thing that you can do. It's a strong civil remedy, and I am sure that will contribute in a big way. But before I conclude, I must say, this is a first step, and so we welcome it wholeheartedly. But there is a long journey which must get into more details and go beyond just welfare measures. And we have to tackle all the conditions of work which don't apply as of now to the gig and platform workers. And there the right to unionization, collective bargaining, wages, social security in greater detail, all forms of victimization, all that have to be addressed. And we are trying to do that. And as soon as our draft is ready in the public domain, we'll be happy to share it with all those who are in this forum to receive your inputs. Thank you for calling us into this discussion. Thank you very much, Professor Matthew. और मैं इन्होंने जो बात रखी है उसका संक्षेप में एक हिंदी अनुवाद रख रही हूँ। शुरुआत हुई वो राजस्थान गवर्नमेंट को शुभकामनाएं के साथ कि उन्होंने ये पहल की। इन्होंने माना है कि सिविल सोसाइटी संस्थाएं और संगठन और मूवमेंट्स के कंट्रीब्यूशन से जिस प्रकार के ऐतिहासिक कानून बने हैं, जैसे RTI, नरेगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट, उस स्तर पर ये कानून को देखना चाहिए। और ये भी एक सिविल सोसाइटी सामाजिक संगठनों का एक कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर वो आते हैं कि इस कानून में ताकत किन किन प्रोविजंस के थ्रू आ रहा है। पहले तो उन्होंने कहा है कि हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पे मार्केट और कंपनी का ही एक राज चल रहा है, नियो लिबरलिज्म, जहाँ पे सरकार की नीतियां भी उन्हीं को ज्यादा फेवर करती हैं। इस दौर में ऐसा कानून जो किसी का हक छीन नहीं रहा लेकिन एक नया हक स्थापित कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिपक्षीय बोर्ड का आना, वो भी एक पुराना एक ऐतिहासिक लेगेसी रहा है जो वापस इसको जोड़ रहा है। और ये एक ILO कन्वेंशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशंस के भी आधार पर इसको ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। जो वेलफेयर बोर्ड्स कुछ तरीकों से कमजोर हो गई है दक्षिण भारत में, जैसे कि तमिलनाडु हो या केरला हो, उसका भी उससे भी सीख के, ताकि
ये परिस्थिति यहाँ पे भी ना आए, उसकी भी सोचने की जरूरत है। इन्होंने कहा है कि ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन इस कानून का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये ऐसा चीज है जो हर जगह सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए जो नीतियां या कानून बन रहे हैं उसमें इसका एक एप्लीकेशन होना चाहिए। और ये ई श्रम जैसे एक जो डेवलपमेंट है जहाँ पे लोगों को जा जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है मुश्किल परिस्थितियों में, ये उसका एक विकल्प दिखाता है और दर्शाता है। और आगे शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी इसका क्या रजिस्ट्रेशन, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन थ्रू लेबर डिपार्टमेंट हो, उसकी भी बात की है। उनका ये भी एंडोर्समेंट रहा है कि हर ट्रांजैक्शन पे एक वेलफेयर सेस फी बिठाने का प्रक्रिया बहुत ही बढ़िया है। और आज बाबू मैथ्यू जी और उनके साथ कुछ लोग कर्नाटका में ऐसा कानून प्रिपेयर करने में, लिखने में पूरे तरीके से लगे हुए हैं, और कह रहे हैं कि यहाँ राजस्थान के एक्सपीरियंस से कुछ जैसे कि ट्रांजैक्शन पर फी के जैसे सीख, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन जैसे सीख, वो भी कर्नाटका के कानून में भी डालना चाहते हैं, और वो सबके साथ शेयर भी करेंगे सार्वजनिक तरीके से, ताकि लोग भी अपने इनपुट्स दे सके। ये कानून जो वर्कर्स के राइट्स को लिस्ट करता है और प्रोटेक्ट करने का आश्वासन देता है, बहुत जरूरी है। और उन राइट्स में से सबसे जरूरी कि गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स का अधिकार है कि वो अपने हित में जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं सरकार से या बोर्ड से, उसमें उनका भागीदारी सुनिश्चित करने का जो अधिकार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस कानून में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मौका देता है वर्कर्स को, लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो इस कानून का क्रियान्वयन कॉन्स्टेंटली करवाते रहे। जैसे कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी वैसा एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस कानून में ऐसे और प्लेटफॉर्म्स तैयार है। और पेनल्टी भी, कि केवल जेल या उस प्रकार की प्रक्रिया नहीं, लेकिन पैसे कैसे रिकवर करे, एक सिविल प्यूनिटिव मेजर का स्थापित करना भी उनका सोच था कि बढ़िया है। और अंतिम में इन्होंने जरूर कहा है कि बहुत सारे और चीजें हैं जिसमें नीति कानून लाने की जरूरत है, जैसे किस हालत में गिग वर्कर्स काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, उनकी न्यूनतम मजदूरी क्या है, वो सारे पक्ष भी है जो शायद ये कानून नहीं देख पाता है, लेकिन ये एक बहुत जरूरी पहली स्टेप है। और इनका प्रयास है कि कर्नाटका में और आगे भी जैसे और प्रयास हो, इसको जोड़ते हुए इन बाकी चीजों के भी कैसे उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। सो थैंक यू प्रोफेसर मैथ्यू। अगला मैं रिक्वेस्ट करूंगी आशीष सिंह, जो राजस्थान में इस पूरे पहल में खुद भी एक गिग प्लेटफॉर्म वर्कर रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है कि अपने साथ बाकी वर्कर्स को भी मोबिलाइज करना, यूनियनाइज करना, और एक स्ट्रगल बहुत सालों का रहा है। तो उसमें उनका हम सुनना चाहते हैं नेक्स्ट आशीष से कि आज आप उनके समझ के अनुसार गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स की क्या दिक्कतें हैं जो लोग महसूस कर रहे हैं, और किस हद तक ये कानून उनको मदद कर सकता है उन तकलीफों के को पार करने के लिए। तो आशीष, आपसे सुनते हैं। धन्यवाद दक्षिता जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। थोड़ा मफल्ड है आशीष, थोड़ा पास आके कह सकते हो तो बेटर है। क्या अब ठीक है? हाँ, थोड़ा बेहतर। तो सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी के प्रयास से सामूहिक सभी जुड़े हैं और मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। और रक्षिता जी, निखिल देव जी, बाबू मैथ्यू जी, जानकी जी, पूरी टीम, यहाँ पे मुकेश जी भी जुड़े हैं, स्कूल SFD, शेख भाई और नचिकेत जी, बहुत सारे साथी जुड़े हैं, सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान, और भी सभी यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि राजस्थान में जो कानून पारित हुआ सभी के सामूहिक प्रयासों से ऐसा हुआ। और बधाई भी देता हूँ कि जो ये कार्य हुआ है ये देश ही नहीं पूरी दुनिया में इसे देखा जा रहा है
और इसी के साथ में अन्य राज्यों में भी जो है इसकी गूंज जो है राजस्थान से जा रही है, क्योंकि मैं ऐसे एक वर्कर भी रह चुका हूँ। 2014 के अंदर जो है स्टार्ट हुआ था जयपुर में, और मैंने एज अ कैब ड्राइवर स्टार्ट किया था यहाँ से। और उसी के साथ में स्विगी जोमेटो में एज अ डिलीवरी बॉय भी मैंने काम किया है। तो स्टार्ट्स में तो कंपनीज ने बहुत अच्छे इंसेंटिव दिए। थोड़ा मैं जर्नी आपको बता देता हूँ कि उस समय से लेके अभी तक के ये मूवमेंट कैसे बने हैं और हमें दूसरे राज्यों से सीखने के लिए कैसे मिला है और यहाँ तक पहुंचे हैं और सभी का साथ कैसे हुआ है। तो मैं उसका थोड़ा सा 2 मिनट में छोटी सी जर्नी बता देता हूँ। जब मैंने एज कैब ड्राइवर चलाना स्टार्ट किया, तो मैं इस उद्देश्य से आया था कि कंपनी ने मुझे कहा था कि मैं 1 लाख रुपए महीना यहाँ पर कमा सकता हूँ, 1.5 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ। बहुत ही अच्छे एड्स किए थे कंपनी ने हर जगह कि आइए और कमाइए 1 लाख रुपए महीना। मैं एज अ सेल्स एम्प्लॉय एक कंपनी में सनशाइन करके किचन वेयर आता है, उसमें एज अ सेल्स देखता था। और जैसे ही मैं अपने टूर करके रास्ता और उतरा, तो मैंने ओला उबर की गाड़ी देखी और उस पर बैठ के मैं गया। मुझे फेसबुक पे ऐड देखा कि ओला उबर की गाड़ी है, तो उसने मैंने उससे पूछा कि आप कितना अर्न करते हो, ये नया कॉन्सेप्ट आया है, ऐसा है। तो जल्दी फिर उन्होंने बोला कि हम 1-1.5 लाख रुपए कमाते हैं और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, केवल लॉग इन रहो और लॉग इन रहने का पैसा मिलता है, थोड़ा सा राइड कर लो और पैसा अच्छा मिलता है। तो मैं वहां से अट्रैक्ट होके और मैंने गाड़ी का सोचा कि चलो कहीं से फंड अरेंज करता हूँ और गाड़ी लेकर आता हूँ और पैसा कमाता हूँ। तो उस तरह से मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट की और मैंने 2-3 मतलब 1 महीने में ये सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवा के मैं गाड़ी ले आया। और फिर उसके बाद मैंने 6-7 महीने बहुत पैसा अच्छा कमाया, मैंने ड्राइवर भी रख लिया, मैंने खुद भी चलाया। और फिर उसके बाद में अच्छा चला 6-7 महीने, फिर मैं एक और गाड़ी ले आया कि भाई और रख लेता हूँ, ड्राइवर रख लेता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। फिर उसके बाद में एक और गाड़ी ले आया, ऐसे 3 गाड़ियां मैं ले आया। मार्केट में मैंने देखा लोग 7-7, 8-8 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, ये प्लान सुन के कि 1 लाख रुपए महीना कमाओ, 1.5 लाख रुपए महीना कमाओ। फिर मुझे इंटरेस्ट आया कि ये ऐसा हो कैसे रहा है, मतलब ये कंपनियां पैसा ऐसे बांट कैसे रही है, हर एक राइड पे इंसेंटिव कैसे दे रही है, 600 रुपए की राइड फ्री कैसे बांट रही है। तो उस इंटरेस्ट पे भी मैंने जाना शुरू किया कि ऐसा हो कैसे रहा है। तो मैंने वहां भी देखा। तो ये तो थी मेरी अर्निंग की जर्नी की भी, मैं उस कमाई वाले स्टेज में था और कमाई से मेरे को काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। फिर डिक्रीजिंग पे आया कि अब डाउन होने वाली स्टेज पे आ गया कि कंपनी ने जितना पैसा बर्न करके मार्केट को बनाना था वो बना लिया। अब मार्केट से उसको रिकवर करना था पैसा, क्योंकि अब साल भर हो गया है या 1.5 साल हो गया है, तो अब पैसा रिकवर करो। इतने में मेरा इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल हो ही चुका था। तो इस बीच में हुआ ऐसा, सोशल जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? सोशल जर्नी स्टार्ट हुई कि जयपुर के अंदर एक ड्राइवर को गोली मार के हत्या कर दी। कस्टमर ने ड्राइवर को गोली मार के हत्या कर दी गई उसमें। और उस समय पूरा जयपुर जो है ओला उबर की कैब ड्राइवर इंडस्ट्री से गिग वर्कर इकोनॉमी का स्टार्ट हुआ। उस समय गिग वर्कर का वर्ड भी नहीं था मार्केट, उस समय केवल कैब इंडस्ट्री थी, स्विगी जोमेटो भी नहीं आया था उस समय, बिल्कुल कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट पूरे इंडिया में भी नहीं पता था कि गिग वर्कर वर्ड भी क्या होता है, और अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वो भी हमें बताना है कि ये इकोनॉमी क्या है। तो वहां से फिर मेरी सोशल जर्नी स्टार्ट हुई और फिर वहां से मैं जो ओला उबर के ड्राइवर्स के साथ इशू आते थे उसके लिए फाइट करता रहा। मैंने बहुत से ऑर्गेनाइजेशन भी साथ में किसी के पैरेलली बिल्ड करे, एक टैक्सी वाहन चालक सेवा संस्था बिल्ड किया। फिर जब इनके इश्यूज आने लग गए इंसेंटिव को लेके, पे आउट को लेके, आईटी ब्लॉकिंग को लेके, या जो भी इश्यूज आ रहे हैं मोनोपोली को लेके, दिल्ली में देखा, हैदराबाद में देखा, मुंबई में देखा, स्ट्राइक्स हो रही है, हर जगह स्ट्राइक्स हुई। 2017 में इतनी बड़ी स्ट्राइक हुई कि 2000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ कंपनी को। यहाँ हमने भी एक स्ट्राइक किया जिसमें करीब 100 CR का लॉस हुआ कंपनी को। हमारी आईटी ब्लॉकिंग की गई, 10 दिन तक कंटिन्यू स्ट्राइक। तो हम कंपनी ने हमारी आईटी ब्लॉक कर दी। जब हम लोगों के फाइट्स के लिए लड़े तो सब चीज उन्होंने हमारी आईटी ब्लॉक करना स्टार्ट किया। और जो भी इंडिया में अभी इनके लिए फाइट करता है तो कंपनी उसकी आईटी ब्लॉक्स कर देती है और वो अपने बिजनेस से टर्मिनेट हो जाता है कि वो। फिर उसके बाद मेरी गाड़ियां सरेंडर हो गई, करीब 25 लाख रुपीज का मुझे व्यक्तिगत लॉस हुआ उस समय। और इस बीच में मैंने खुद का ऐप भी बनाया, स्वदेशी टैक्सी, एक कुछ स्वदेशी टैक्सी करके खुद का ऐप बनाया मैंने 2017 के अंदर। कुछ लोग आए हमारे पास में और ऐसे बहुत सारे भी
ट्राई करें, क्योंकि मैंने सोचा कि इन कंपनी के अगेंस्ट में विकल्प में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैंने खुद का ऐप बनाया। तो उस समय कंपनी ने गिराने के लिए हमें 5 करोड़ रुपए लगा दिए। मतलब ड्राइवर को इंसेंटिव बांट दिया, आप प्रतिदिन 10,000 रुपए ले जाइए और किसी दूसरे ऐप में ना चलिए, क्योंकि कंपनी ने जयपुर को खड़ा करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए खर्चा, केवल ये राजस्थान को खड़ा करने के लिए। ओला उबर की बात कर रहा हूँ मैं आपको, स्विगी जोमैटो की बात नहीं करता, अर्बन कंपनी की बात नहीं करता, क्योंकि स्टार्ट ओला उबर से हुआ। तो ये ऐसा रहा, और फिर फाइट्स पे फाइट्स होती रही। फिर नेशनल फेडरेशन में कनेक्ट हुआ, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बनी, क्योंकि फिर उस समय एक तरह से बर्बाद हो चुके थे कि आप कुछ करना नहीं है, आप केवल हकों के लिए लड़ना है, और बस फिर लड़ते रहे और जितना हो सका करे। फिर पार्टी के अंतर्गत एक यूनियन बनाई, राजस्थान महाचार्य संगठन, उसमें भी विघटन हो गए, क्योंकि कंपनी ने कभी यूनियंस को चलने ही नहीं दिया, ना नेशनली चलने दिया, इंटरनेशनली भी हमने सुना कि वहां पर भी उसने यूनियंस को कभी चलने नहीं दिया। दूसरी यूनियन को फंड कर दिया एक यूनियन को गिराने के लिए, ऐसा भी किया। जैसे ऑर्गेनाइज होने लगे तोड़ दिया, आईडी ब्लॉक्स करना, कॉल्स करके वर्कर को ऑर्गेनाइज होने से रोकना। क्यों? क्योंकि जैसे ऑर्गेनाइज करते हैं वो कॉल्स करते हैं कि आप क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इसका तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। और नॉट ओनली इन जयपुर, नॉट ओनली इन राजस्थान, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया, इंटरनेशनल मूवमेंट में भी सेम ऐसा ही अभी भी फेस करना पड़ रहा है, और आगे भी कितने हद तक फेस करना पड़ेगा वो एक चैलेंज है यहाँ पे। क्योंकि बिना वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करे इस इंडस्ट्री के अंदर इसमें बड़े मूवमेंट नहीं बनाए जा सकते। तो उसके बाद में जब हम यहाँ से जुड़े सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान से, करीब साल भर हो चुका है मेरे को, और जब हमें कानूनन तरीके से पता पड़ा कि कानूनन तरीके से हम कैसे लड़ सकते हैं, संवैधानिक तरीके से हम कैसे लड़ सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिला। हमने जाना, समझा, वर्कर्स को भी समझाया, औरों को भी समझाया, तो वो मूवमेंट बना। और उस मूवमेंट में फिर हमने जितना हो सकता है हमारे लेवल में सभी के साथ मिलकर सामूहिक प्रयास किए, और फिर प्रयास करने के बाद में आज पहले दिशा बन रही थी कि एक ऐप बनना चाहिए, कि राजस्थान में दिशा बन रही थी कि एक ऐप बनना चाहिए। तो उसी की दिशा में आगे बात बढ़ती गई, और एक मुझे कानून और जो अब मथाड़ी का एक मॉडल हमें सीखने के लिए मिला, हम इसे देखने भी गए। तो उसी के आधार पे फिर इसमें डिजिटलाइजेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि मथाड़ी बोर्ड के अंदर भी हमने देखा उसके बहुत सारे लूप होल्स थे। और फिर हमने बीओसीडब्ल्यू बोर्ड को भी समझा, उसमें भी उसके बहुत सारे लूप होल्स थे। तो वो लूप होल्स जहाँ ना रहे वो भी समझे, कैसे इसमें डिजिटलाइजेशन का कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे आज बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में 87,000 करोड़ रुपए है नेशनली, लेकिन वो कितना सरकार उसे यूज कर रही है, कितना वर्कर्स के लिए लगा रही है, कौन से वर्कर्स उसके अंदर जुड़ रहे हैं, मैनुअली सेटअप है, कोई वर्कर्स की डिफाइनिंग नहीं है, यूनियंस का कितना कंट्रोल है, यूनियंस को कितना समावेश गवर्नमेंट ने दिया है, कितना नहीं दिया आशीष, है। 2 मिनट में अगर आप 2 मिनट में और करना है। तो ये सारी चीजें देखी, और अभी जो राजस्थान के अंदर जो प्रयास हुआ है, या मथुरी के अंदर भी हमने देखा कि वहां पर क्या है और उसमें क्या लोकल है, तो वो सारी चीजों को भी सारी टीम के साथ डिस्कस किया, और जितना हो सकता है इसको अच्छा बनाने की कोशिश करी, इस कानून को, इस बोर्ड को। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में अभी जो है दिल्ली से, पंजाब से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से और राजस्थान से, इसी के अलावा अपने हरियाणा से भी लोग जुड़े हुए हैं। मैंने एक दो लोगों को जोड़ने की कोशिश करी है, क्योंकि मुझे अभी से ही वो हर जगह से कॉल्स आ रहे हैं कि इस कानून को हमारे राज्य में भी लाया जाए, इस कानून को हमारे राज्य में भी लाया जाए, और हर जगह से कॉल आ रहे हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि वो जो भी लोग अन्य राज्यों में इसमें चेष्टा रखते हैं, तो वो लोगों की भी समझ बने और वो भी वहां पर इस आवाज को उठाए और ऑर्गेनाइज करें, और हम भी उनकी सहायता कर सकें। तो जितने भी साथी सुन रहे हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने राज्य में इस बात को जो यहाँ सुन रहे हैं जरूर बताइएगा, समझाइएगा, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़िएगा, ताकि हम इस आवाज को पूरे देश में लेकर जा सके। क्योंकि एक अकेले राज्य में बनने से तो एक पड़ाव है ये, और हमें इसको आगे पूरे देश में लेके जाना है, और बिल्कुल एक बेहतर प्रयास करना है। तो बिल्कुल हाँ, तो फिर ये दिशा बनी रचिता जी और सभी को बस बताना चाहूंगा, इतना ही रहा। और आगे वर्कर्स तक पहुंचने के लिए हम सभी से ये निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वर्कर्स को नहीं पता पड़ रहा है कि उनके लिए क्या हो रहा है, वैसे तो यहाँ डिजिटल मॉडल है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि डिजिटल है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कंपनियां बहुत 10 लाख करोड़ की कंपनियां, जिनके पास 10 लाख करोड़ रुपया है, टीम है, सब कुछ है। हम जब भी ऑर्गेनाइजिंग के लिए जाते हैं तो वो पैसे से भी तोड़ती है और अपने सिस्टम से, टेक्निकल से भी तोड़ती है। तो हमें भी टेक्निकली साउंड होना चाहिए, सारे तरह से साउंड होना चाहिए,
नंबर में भी काउंट होना चाहिए। 4 लाख वर्कर अगर राजस्थान में है और 80 लाख वर्कर पूरे इंडिया में है, तो 8 लाख वर्कर्स की कनेक्टिविटी कम से कम 10% तो हमारे पास में होनी चाहिए। उस दिशा में भी हमें सोच के करना चाहिए ताकि ये मजबूत बने। कोई भी सरकार या कोई भी कंपनी इसका इंडिविजुअल कंट्रोल ना कर ले, इसमें वर्कर की भी उतनी भागीदारी रहे, कंपनी की भी रहे और सरकार की भी रहे, तीनों की इक्वल रहे और सबके साथ न्यायोचित कार्य हो, जस्टिसफुल काम हो और सभी को इसके बेनिफिट्स। थैंक यू, थैंक यू आशीष। और बहुत जरूरी भी आपका खुद का अनुभव जो है और व्यक्तिगत, और उसी से ही एक ये एक आप और आप जैसे बहुत सारे जो गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स है राजस्थान में और यूनियंस के साथ जिन्होंने इस कैंपेन को एक दिशा दी, और उसका भी एक उसका इतिहास और उसका बेस क्या था वो सुनना बहुत जरूरी था हमारे लिए। अगले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जानकी हमारे साथ जो जुड़ी है, जो फेयर वर्क एक संस्था है जो बेसिकली इन ये जो अलग अलग एग्रीगेटर्स है, प्लेटफॉर्म्स है, उनके काम को समझ के उनको रेट करना कि वो किस हद तक मजदूरों के अधिकार और हित को देखते हैं खुद के पॉलिसीज के तहत। तो एक प्रक्रिया ये हर साल चलाते हैं जहाँ पे ये अलग एग्रीगेटर्स और प्लेटफॉर्म्स को स्कोर देते हैं, रेट देते हैं कि वो किस हद तक वर्कर्स के हित तक सोच पाते हैं या उनकी नीतियां किस हद तक वर्कर्स के हित तक सोच पाते हैं। तो उनसे हम ये सुनना चाहते हैं कि ये प्रक्रिया रेटिंग की कैसे होती है और उससे क्या निकल के आ रहा है, और वो कैसे समझती है कि इस राजस्थान जैसे कानून क्यों जरूरी है एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट डाउन करने के लिए, और क्यों ये ऐसे कुछ चीजें हैं जो केवल एग्रीगेटर्स और कंपनीज के स्व इच्छा या अपनी स्टैंडर्ड्स के आधार पे ना चले। तो जानकी। थैंक्स रक्षिता। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जन आवाज और विकल्प संगम को कि ये अपॉर्चुनिटी दिया बात करने का। फिर जैसे मेरे पहले वाले स्पीकर्स ने भी बोला, बहुत बहुत बधाई राजस्थान में सब लोग जो जुड़े और पूरे देश में जितने लोग जुड़े ये कानून आ पाया। और जैसे निखिल जी कह रहे थे, बिगिनिंग टू एंड काफी यूजुअली इतना शॉर्ट पीरियड नहीं होता है, हमें ये भी याद रखना चाहिए। तो रक्षिता जी के सजेशन पे मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ये बताती हूँ कि फेयर वर्क के निकल के आने का पहले संदर्भ क्या था, हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही मैं संक्षेप में बताऊंगी। और जो चीजें हमें जमीनी तौर पे मिली उनका भी ये लॉ किस तरह से उन चीजों को शायद एड्रेस कर सकता है। और मतलब आगे जैसे सबने कहा करने को बहुत कुछ है, तो थोड़ा सा वो भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। तो फेयर वर्क एक्चुअली अब हम 40 देशों में हैं, लगभग 40 देशों में हैं। बट जब 2018 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब अब से कई चीजें कई डिफरेंट थी। मतलब जितना हमको आज न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है कि गिग वर्कर्स के वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं, उतना उस टाइम पे इसके बारे में बात नहीं होती थी। रेगुलेशन तो बिल्कुल नहीं था, जो रेगुलेशन थे वो भी अप्लाई नहीं हो रहे थे। जैसे आशीष जी ने बताया, गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर टर्म भी बहुत अनफेमिलियर था, ज्यादा सुनने को नहीं मिलता था। तो हमारा पॉइंट ये था कि जब रेगुलेशन है नहीं, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। एक तो ऑब्वियसली रेगुलेशन के लिए पुश करना है, एक वो था, पर वर्कर्स के कंडीशंस के बारे में बात करना है, क्योंकि हम देख रहे थे कि एक ही बातचीत चल रही थी गिग इकोनॉमी के बारे में कि कितनी नौकरियां ये जनरेट कर रहे हैं, कितना कन्वीनियंस ला रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती थी, वर्किंग कंडीशन के बारे में कोई नहीं बात कर रहा था। तो वो भी था। उस टाइम पे इतना वर्कर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं था, जैसे आशीष जी ने बताया। वो शुरुआती दौर में तो खैर इतना इंसेंटिव वगैरह था कि इतने स्ट्राइक्स थे भी नहीं। कंडीशंस तो 18-19 में बहुत ज्यादा चेंज होने लगे। तो साल रेटिंग अभी 1-2 महीने में हमारा इस साल का आएगा। हम डिफरेंट शहर, सो हम शायद एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टी ईयर मल्टी सिटी, हम लोग आजकल कोची, बैंगलोर और दिल्ली में वर्कर्स से बात करते हैं। मल्टी डोमेन मतलब
ओला उबर भी, बट डिलीवरी वर्क भी, होम सर्विसेज भी, मेडिकल डिलीवरी, तो काफी डोमेन और हर एक के अंदर काफी प्लेटफॉर्म को भी कवर करते हैं। और हम फेयरवर्क के 5 सिद्धांत लेके चलते हैं जो वर्कर्स के साथ वर्कशॉप में डिस्कस किए गए, और ILO के जो वर्क के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से हैं। तो हमारे 5 सिद्धांत हैं: फेयर पे, यानी वेतन उचित हो; फेयर कंडीशंस, काम करने की परिस्थितियां उचित हों; फेयर कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध हो जो फेयर हो; फेयर मैनेजमेंट या निष्पक्ष प्रबंधन; और फेयर रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व, वर्कर्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि ये काम चलता कैसे। तो इन 5 सिद्धांतों पे हम लोग प्लेटफॉर्म से भी एविडेंस लेते हैं, वर्कर्स के साथ भी इंटरव्यू करते हैं, डेस्क रिसर्च भी लेते हैं, और इन सबको फिर एक साथ जोड़ के हर साल पिछले 4 साल से हम लोग स्कोर निकालते हैं प्लेटफॉर्म्स का। और ये तो आपको शायद पता ही होगा कि स्कोर्स ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। दो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिफरेंस भी बहुत है, क्योंकि फूड डिलीवरी और होम सर्विसेज बहुत अलग अलग चीजें हैं, तो हर एक में तकलीफें भी अलग होंगी, जाहिर है। बट एक चीज जो हमको फिर से देखने को मिला, और जो हमने काफी फोरम्स में उसके बारे में बात भी किया है, ये है एक ओपेसिटी या अपारदर्शिता। एंड इसमें भी हमको 3 तरीके के अपारदर्शिता मिली। एक कि जैसे आई थिंक ऑलरेडी 2 स्पीकर्स ने बोला कि हम एक हाथ में तो ये कह रहे हैं कि गिग वर्क की वजह से इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, बट एक्चुअली नंबर्स किसी को नहीं पता है। तो हमारे जो अप्रोक्सीमेट नंबर भी हैं वो मतलब मिलियंस से फर्क खाते हैं, तो फिर उसको आप अप्रोक्सीमेशन भी नहीं बोल सकते। तो कितने वर्कर्स हैं हमको इसका आइडिया नहीं है, गवर्नमेंट के पास ही फिगर नहीं है। फिर हम लोग एक हाथ पे ये कहते हैं कि डेटा बहुत सारा है इस गिग इकोनॉमी में, पर किसके लिए, किसके बारे में है वो डेटा और किसके पास अवेलेबल है, ये चीज भी बहुत इसमें भी काफी अस्पष्टता थी कि किसके बारे में डेटा है और कौन उसे एक्सेस कर सकता है। और तीसरी एक ये भी बात है, ये जो एल्गोरिथमिक अपारदर्शिता जो है कि वर्कर्स को काम मिलता क्यों है, अगर 3 लोग खड़े हैं वेट कर रहे हैं काम के लिए, एक को क्यों मिलता है बाकी 2 को क्यों नहीं मिलता है। खैर ये सब तो मतलब आगे की बहुत सारी लड़ाइयां हैं मेरे हिसाब से, बट ये 3 तरह की अपारदर्शिता थी जो हमको ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म में और वर्कर से बात करते हुए मिली। फिर जब हम लोग हमारे सिद्धांत 1 by 1 सिद्धांत पे जाते हैं, तो एक बात तो ये है कि ऑलमोस्ट कोई भी प्लेटफॉर्म न्यूनतम मजदूरी नहीं गारंटी करता है, स्पेशली जब आप काम के रिलेटेड खर्चे आप अकाउंट कर लेते हो, तो वो नहीं गारंटी करता है कि हर वर्कर जो इस प्लेटफॉर्म पे काम करेगा उसे आवरली मिनिमम वेज तो मिलेगा ही मिलेगा, वो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। फिर जैसे आपका इमरजेंसी हुआ, इंजरी हुई, सामाजिक सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है ऐसे केसेस में। और इसमें ये भी एक थोड़ा एडिशनल कंफ्यूजन है कि एक तरह से अगर आप देखें तो गिग वर्क में बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, लेबर भी है, सोशल जस्टिस भी है और IT भी है। कंपनीज कहती हैं हम तो IT कंपनी है ना, हम लोग तो ट्रांसपोर्ट कंपनी है ही नहीं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट और ये एग्रीगेटर तो हैं ही, सब कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। जब इतने सारे एंटिटी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको सामाजिक सुरक्षा एक तो है नहीं, जिन केसेस में है आपको नहीं पता कि वो कैसे जाके उसको अवेल कैसे करें। तो ये एक बात थी। कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने पाया कि लायबिलिटीज बहुत एसिमेट्रिक है, मतलब सारे खर्चे, जैसे आपका अगर आप काम नहीं कर रहा है तो उसका खर्चा कौन उठाएगा। एंड में हर चीज का खर्चा वर्कर ही उठा रहे थे, और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कई सारी चीजें लिखी भी हुई थी कि हम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर शिकायत हो अगर वर्कर को तो वो कहाँ जाए, और यहाँ भी वो बात भी आ जाती है कि डिपार्टमेंट आपके इतने सारे हैं और कंपनी के विदिन ही किधर जाना है मोस्टली नहीं पता होता था। आशीष जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कैसे ID ब्लॉकेज एक तरीका हो गया जिससे आप लोगों को बात करने से बंद करते हैं, तो एक वो था। और हर साल हमने ये पाया कि प्लेटफॉर्म्स कलेक्टिव एक्शन के बिल्कुल विरुद्ध हैं और वो बिल्कुल निगोशिएट नहीं करना चाहते हैं कलेक्टिव बॉडीज से। तो ये बात भी बहुत स्पष्टता से हमें नजर आई हर साल। तो फॉर ऑल दीज रीजंस ये राजस्थान का एक्ट, ऑब्वियसली वी आर वेरी वेरी थ्रिल्ड विद इट।
एंड कई तरीके से ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है। एक तो ऑब्वियसली सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात कर रहा है, जो हमारा रिसर्च डेफिनेटली दिखाता है कि एक बहुत रियल क्वेश्चन है वर्कर्स के लिए। इस बात पे भी बात करता है कि वर्कर्स को काउंट करना है। पहले तो हम पता लगाएं कि ये किस साइज की हम बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही तो आगे का प्लानिंग या कुछ भी सिस्टम जमेगा। इस बात की भी हमें बहुत खुशी है कि बोर्ड में वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स डायरेक्टली तो बात करने से मना करते हैं, तो बोर्ड में एटलीस्ट उनका होना बहुत बहुत जरूरी है। बट ये भी बहुत अच्छी बात है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्योंकि वर्कर्स की बहुत बार ये शिकायत होती है कि हम एक डिपार्टमेंट में जाएं तो वो दूसरे के पास भेज देते हैं, किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि फंडामेंटली ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बात बहुत अच्छी है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ऑल्सो मैंडेटरी फीमेल रिप्रेजेंटेशन आई थिंक इज ऑल्सो वेरी गुड स्टेप, क्योंकि इन जनरल विमेन वर्कर्स कुछ सर्विसेज में ज्यादा सीमित हैं, बट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स कोशिश कर रहे हैं कि और फीमेल वर्कर्स को हायर करें, तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स काफी अलग हो सकते हैं। प्लस ये पूरा प्रोसेस भी बहुत इंस्पायरिंग रहा हमारे लिए, इन द सेंस कि गिग इकोनॉमी के बारे में जब हम बात करते हैं, एक शब्द बहुत बार आता है डिसरप्टिव, कि ये हर तरीके से इससे पहले जो आया उससे अलग है। तो हमें ये बात इसमें बहुत अच्छी लगी कि क्योंकि मथड़ी बोर्ड के लेबर ऑर्गेनाइजेशन और हिस्ट्री को देख के ये बनाया गया कि कुछ कंटिन्यूटीज भी हैं, बहुत सारी कंटिन्यूटीज हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ चेंज हो गया है और कुछ कहीं और से ही हमें लॉ निकाल के लाना पड़ेगा। पहले भी ये संघर्ष हुए हैं और उनसे हम क्या सीख सकते हैं, तो वो बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे प्रोफेसर मैथ्यू ने कहा और बाकी स्पीकर्स ने भी कहा, एक ये बहुत ही ब्रिलियंट बात इसमें ये है ट्रांजैक्शन बेस्ड वाली, क्योंकि प्लेटफॉर्म से जो हमारी बात होती है उसमें एक जगह आके बात अटक जाती है कि ये फ्लेक्सिबल वर्क है, वर्कर्स बहुत सारे ऐप पे काम कर सकते हैं। तो अगर आप उबर में भी हो और ओला में भी हो, तो आपकी सामाजिक सुरक्षा मुझ पे क्यों, उबर पे क्यों, क्योंकि आप ओला पे भी काम करते हो। तो वो मल्टी ऐपिंग वाला पूरा सवाल ही यहाँ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन के बेस पे करते हो। तो वो दैट इज अनदर रियली इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस बिल। तो करने का काम बहुत कुछ है। I'll wrap up. So within the law itself, ऑपरेशनलाइजेशन पे बहुत चीजें निर्भर करती हैं कि किस तरह से ये डिसबर्स किया जाएगा, वेलफेयर फंड अक्यूमुलेट होता ना जाए और एक्चुअली उसका इस्तेमाल हो, ये कैसे मॉनिटर होगा, ये सारे सवाल तो सोचने ही पड़ेंगे। और इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्चुअली ऑपरेशनलाइज कैसे होगा और टेक्नोलॉजी उसकी कैसी होगी, कैसे बिल्ड होगा, ये सब भी सवाल हैं। ये सब तो इसी के रूल्स के विदिन है, बट इसके बियॉन्ड भी ऑब्वियसली न्यूनतम मजदूरी वाला सवाल तो बहुत एक बड़ा सवाल है, जो डेफिनेटली इसके बाद में डील करना होगा। दैट्स ऑल आई हैड। थैंक यू। थैंक्स रक्षिता। बहुत शुक्रिया जानकी और उनके टीम का जो अनुभव रहा है इन एग्रीगेटर्स को, जैसे उन्होंने कहा, अलग अलग जगहों पे और अलग अलग एग्रीगेटर्स को इन्हीं न्यूनतम चीजों के बारे में समझना और ये देख पाना कि साल पर साल क्या चीजें बिगड़ रही है या जैसे ही रही थी वैसे ही है कि बेहतर सच में हो रहा है। ये एक्चुअली शायद हमारे देश में ऐसा एक एविडेंस टाइप ऑफ रिसर्च बहुत हुए हैं, शोध बहुत हुए, बट कंपनी से सीधा सूचना लेके और उस आधार पे एक एविडेंस बनाना ये बहुत जरूरी रहा है। और उससे हमें भी बहुत सीख मिली है कि किस तरीके के मिनिमम स्टैंडर्ड्स कानून में बांधने चाहिए। तो थैंक यू जानकी। अब मैं अगले वक्ता के पास जाऊंगी, जो एक्चुअली सूची में तो आखिर है लेकिन पहल में सबसे पहले रहे हैं, शेख सलाउद्दीन, जो हम सब गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के राइट्स और उनके बारे में सोचते हैं तो इनका नाम और चेहरा सबसे पहले आता भी है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे को शुरुआत में ही जब हम में से बहुत लोग एक्चुअली नहीं समझ पाए थे कि क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, तब उसी टाइम पे कैसे वर्कर्स को मोबिलाइज करना, यूनियनाइज करना और इसकी एक लड़ाई तैयार, उसकी भूमिका बनाना
उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व रहे हैं। तो शेख जी, आपसे अनुरोध है, ये कानून क्यों महत्वपूर्ण है, एक तो ये, और दूसरा क्योंकि आप इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और इंटरनेशनल अलायंसेस के भी पार्ट है, आगे की रणनीति में आपको क्या लगता है कि ये राजस्थान कानून के आने से आपका आगे का दबाव और एडवोकेसी कैसे और कहाँ और चल रहा है और कैसे और इसको ताकत देती है, उस पर अगर आप बात रखें। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत। पहले तो जनआवाज इस मंच क्रिएट किया क्योंकि बहुत सारे गिग वर्कर्स के तक ये बात रीच हो सके बहुत स्टेट्स के अंदर। और इस जूम मीटिंग से निखिल डे सर का, बाबू मैथ्यू साहब का, रक्षिता जी का और हमारे जानकी जी का, हमारे आशीष भाई का, जो भी इस मुनीम में जुड़े हैं, उन सब का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा हम सुने, मेरे लिए बोलने के लिए अल्फाज बहुत कम हो गए क्योंकि सभी लोग सारे चीज कवर हो गए मैक्सिमम। जैसा हमारे आशीष भाई कवर कर दिए, रक्षिता जी भी बहुत कवर कर दिया और जानकी जी भी कवर कर दिए। तो खैर मैं इसमें सिर्फ 2-3 चीज आगे की रणनीति के लिए बस बोलना चाह रहा हूँ, जैसा रक्षिता जी ने मेरे को मौका दिया। हाँ जरूर, आज के तारीख में मेरा फोकस है कि अभी जो रूल्स राजस्थान के बन रहे उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हो, वो रूल्स अच्छी तरीके से बने, क्योंकि एक देश का एक पहला जो कानून बना है वो कहीं ना 2 दिन पहले कि एक राजस्थान का मॉडल क्यों ना हम साउथ अफ्रीका में और उस कंट्री था वो नीदरलैंड में क्यों ना इसको अपनाए। तो लोग को मैं ड्राफ्ट वगैरह भी भेजा हूँ, तो लोग भी रूल्स का इंतजार कर रहे। जब रूल्स बनेंगे तो वहाँ पे भी उनके गवर्नमेंट्स पे, वहाँ पे भी दूसरे कंट्रीज पे भी कैसा प्रेशर बना सकते। एक तो माहौल हम लोग इंटरनेशनल पे भी बनाना चाह रहे, क्योंकि इंटरनेशनल में भी बहुत कम जगह हम लोग देख सकते कानून बना हुआ है गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के ऊपर। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब राजस्थान का, क्योंकि इन्होंने गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की आवाज़ सुना भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के जरिए। और राहुल गांधी जी भी जब हैदराबाद से उनकी जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उनके दिल और दिमाग में बैठा और हर जगह भी जो है गीग वर्कर्स की आवाज़ उन्होंने उठाई। और राजस्थान में सरकार थी तो वहाँ पे मौका था उनके लिए बनाने के लिए, बना के बताया कि हम गीग वर्कर्स के साथ हैं। और देखे होंगे आप रिसेंटली राजस्थान के बाद कर्नाटक का जब इलेक्शन चुनाव था और वहां पे भी उन लोगों ने गीग वर्कर्स को मैनिफेस्टो में डाल के 3,000 करोड़ गीग वर्कर्स के लिए दिया और गीग वर्कर्स को वहां पे 4 लाख का इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया। जैसा अभी बाबू मैथ्यू साहब ने कहा कि वहां पे कानून बनना भी जरूरी है, उसके लिए भी दिलचस्पी है वहां पे कर्नाटक की सरकार को। लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी गैसो महीने में लेबर मिनिस्टर के साथ, वहाँ पे कर्नाटक के साथ। उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टेड थे कि हम यहाँ पे भी कानून बनाएंगे गीग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। और यहाँ पे जो बोर्ड बना, जो हमारा सारा अगर जब आप ढांचा, जैसा अभी निखिल सर, रक्षिता मैडम ने कहा, हम सबको अगर जब उसमें देखेंगे तो हमें बहुत सारे फायदे हैं। अभी बोला ना मैं, फूल नहीं फूल की पत्ती से ही कुछ ना कुछ हम लोग ने हासिल करने की कोशिश की। ये एक पहला हमारा स्टेप है। इस स्टेप में हम लोग सब मिलके हम लोग ने हासिल किया और आगे भी हासिल करने में आप सबकी मदद इसमें होना जरूरी है। जैसे कि अभी आज के तारीख में तेलंगाना जैसा स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, सरकार पे प्रेशर बना के रखे हम लोग ने। तेलंगाना गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स पूरी तरीके से रात दिन इस चीज पे लेके बैठी कि अब के इलेक्शन में कुछ ना कुछ सरकार से गीग वर्कर्स के बारे में कानून बनाए, बोर्ड बनाए, एक प्रेशर बिल्ड करके हम लोग सरकार पे रखे। और सरकार से लगातार हमारी रिप्रेजेंटेशन लेबर मिनिस्टर से जा रहे, आईटी डिपार्टमेंट में जहां जहां तक हमारी पहुंच है, रीच हो सकती, वहां तक हम लोग सरकार से मिलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी अगले आने वाले चुनाव देखते हुए, नजर में रखते हुए, चाहे वो सेंट्रल के हो चाहे वो स्टेट के हो, कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाना चाह रहे, क्योंकि आज के तारीख में लैक्स ऑफ गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स डिपेंडिंग अपॉन दी गिग इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमी बीते हुए 12 साल से जो है कानून नहीं रहने की वजह से हवा में उड़ रहे थे, मगर एटलीस्ट राजस्थान ने काम किया कि हाँ उसको
एक पिंजरे में पिंजरा भी नहीं बोल सकते, बस एक कानून का दायरा बताया कि आपका दायरा इतना ही है, इससे बढ़ के उड़ना भी चाहे तो आपको ये चीज पे लगाम है, आप इसको फुलफिल करना पड़ता। तो एक पहली हमारी जो पहल थी उसमें सक्सेस हुए हम। अभी सरकार, केंद्र सरकार पे मेरी पूरी फोकस है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऊपर रूल्स बनाने लगा है। जो सोशल सिक्योरिटी कोड निकल के भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुए बीते 3 साल से, तो लगातार मेरी पूरी कोशिश है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रेशर बिल्ड करके वहां पे हम लोग जैसा आप देखे होंगे 3 दिन के नीचे भी मैंने पार्लियामेंट में MP साहब से आवाज लगाई थी, उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाया और राज्यसभा में भी एक आवाज उठी। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने का हम लोग ने काम किया और सरकार भी इस तरीके से सोचो के पहल स्टार्ट करी। गीग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कुछ देना चाहिए, वो जो डिपेंड था, पहले से भी बोले थे, सोशल सिक्योरिटी कोड जो 2020 में पास हुआ था वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने पे तवज्जो दे। जैसा कि अगर जो उसमें देखेंगे हम बहुत सारे जो बेनिफिट्स है, जैसा हम लोग राजस्थान के अंदर बहुत अरसे से इस पहल के अंदर हम लोग ने कामयाबी की, वो सारे चीज उसके अंदर भी हम देख सकते। मगर एक अभी भी जैसा हमारे आशीष भाई बोले, रक्षिता जी बोले, अभी जानकी जी भी बोले, कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे अभी लूप पॉइंट्स है, उसको हम नजदीकी से बारीकी से देख के फुलफिल करना पड़ेगा। जैसा बाबू मैथ्यू साहब ने कहा कि हम लोग वेज भी देखना चाहिए, वेज में कैसा वेज देखना चाहिए, उसके ऊपर वर्किंग आवर्स के ऊपर देखना चाहिए। तो ये चीज जहाँ पे जो हो रहा और एडिशनली जहाँ पे जो हो सकता, वैसा हम सबका सपोर्ट लेके इस चीज में जरूर आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ अगर जो आज के तारीख में हम देखेंगे तो अ, अभी एग्रीगेटर कंपनीज के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर बन के है राजस्थान सरकार। तो आप देखे होंगे कि एग्रीगेटर कंपनीज कितना सेटबैक होने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज अभी तक जैसा अभी हमारे आशीष भाई बोले, मल्टीपल आईडीज डीएक्टिवेशन करते जा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ गया कि इतने वर्कर्स होकर जब हम बताएंगे डैशबोर्ड पे, अगर जा लेके आके गवर्नमेंट के सामने ये डाटा पूरा अगर जा गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर गिर सकता। तो उसके लिए लगातार हर शहर में, चाहे वो अर्बन कंपनी हो, चाहे डिलीवरी हो, चाहे ओला उबर के ड्राइवर हो, चाहे ग्रोसरी डिलीवरी हो, मल्टीपल आईडीज जो है वर्कर्स के ब्लॉक करते जा रहे। तो हम लोग एक तरफ से ब्लॉक का भी आंदोलन कर रहे, लेबर डिपार्टमेंट के पास भी अपना रिप्रेजेंटेशन लेके जा रहे, गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बनाते जा रहे। बट लास्ट में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अभी भी सामने आए, इस वर्कर्स की जो डिमांड है उसको सुना जाए, जो सोशल सिक्योरिटी 2020 कोड बना के रखे उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। उसमें ही क्लियर कट उन्होंने कहा 1 से 2% टर्नओवर पे लेके सारा उनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, सेंट्रलाइज वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, उसके अंदर सारे गीग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को हम वेलफेयर स्कीम्स देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सेंट्रल में भी होना चाहिए। अगर जो सेंट्रल की कहीं ना कहीं लूप पॉइंट के वजह से ही, लूप रहने के वजह से ही स्टेट गवर्नमेंट्स पे प्रेशर गिर रहा, स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो है मजबूरन अपने लिए कानून या वेलफेयर बोर्ड बनाने में आज के तारीख में बने हुए, क्योंकि वर्कर्स का बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है स्टेट गवर्नमेंट्स पे बढ़ते जा रहा। तो अगर जो सरकार आज के तारीख में भी इस चीज को देख के नहीं देखे जैसा छोड़ देंगी, तो जरूर ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। अगले आने वाले चुनाव में सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी प्रेशर पड़ेगा, तो सेंट्रल पे भी प्रेशर पड़ेगा। तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज आज के तारीख में जहां इलेक्शन हो रहे, जहां पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगले चुनाव जो सेंट्रल के भी होने जा रहे हैं MPs के, सभी के जो नजर है जो गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स पे पड़ी हुई है। हम लोग ने उतना तो प्रेशर बना के रखा सभी सरकारों पे। हाँ, मैं सभी से आशा करता हूं कि हर गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के जो वर्कर है, हम हमारे क्षेत्र में हम भी थोड़ा, चाहे वो MLA हो, चाहे वो MP हो, MLC हो, उनके पास हम लोग थोड़ा यूनियन, लोकल यूनियंस भी प्रेशर बनाते चले, क्योंकि इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हर शहर में जितने भी हमारे एफिलेटेड स्टेट्स है वहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से प्रेशर बना के रखा है। जैसा कि आज हमारे साथ देख सकते हैं, हमारे आशीष भाई है, धर्मेंद्र भाई है, राजस्थान से, लखनऊ से और कोलकाता से, मुंबई से, हैदराबाद से और हमारे दिल्ली से, बैंगलोर से, हम लोग जितना Tier 1 Tier 2 सिटीज, Tier 3 सिटीज तक हम लोग ने रीच आउट करके कर रहे। असम गुवाहाटी जैसे शहर में भी हम लोग ने कहीं ना कहीं उन लोग को जागरूक करना और यूनियन को ऑर्गेनाइज करना और वहाँ पे उनको अवेयरनेस क्रिएट करने का काम इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स कर रहा।
तो बस मैं आखिरी में एक बात बोल के मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा हूँ। बस मेरा कहना यही है, अगर जा आज के तारीख में भी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स इस वर्कर्स के बारे में नहीं सोचेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एग्रीगेटर कंपनीज बार बार, जैसा अभी हम लोग ने सुना, फेयर वर्क जैसे कंपनी से भी जब नेगोशिएबल करना है, जब उन लोग भी बात करना है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रेस मीडिया हो, कभी भी उन लोग मीडिया के सामने खुल के आके अपनी आवाज नहीं रखते, क्योंकि उनके पीआर से वो न्यूज मिलती है, हमें वही न्यूज डालना पड़ता है, या उनका कोई पीआर कोई ऐड डाल रहा, कोई जैसा कि ओला प्राइम, उबर प्राइम, बड़े बड़े जो भी है उन लोग के स्कीम्स है, उसके लिए तो लोग पहले आके जवाब देते। बट अगर जब कहीं पे भी अटक के है, कोई इश्यूज है, कहीं डिलीवरी बॉय का इंतकाल हो गया, कहीं डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट हो गया, कहीं ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, और किसी भी अर्बन कंपनी के ऊपर जो बंदा शॉक लग के मर गया, ये सारे चीज के ऊपर उनका रिएक्ट नहीं आता, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे सरकार हो। तो आज के तारीख में राजस्थान के पास हम लोग जो मेन सबसे बड़ा हथियार मैं बोलता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी एक हथियार है, तो दूसरा हथियार हमारे पास ग्रीवेंस सेल है। वहां पे हम जरूर शिकायत दर्ज करके हमारी हर शिकायत का जो है रिटर्न में जवाब लेने का बोर्ड से एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस चीज को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि एक नई चीज की एक प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट हुई। और ट्रांसपेरेंसी की बात है, हम सबको पता है कि ओला पे हो, उबर पे हो, चाहे वो स्विगी जोमेटो पे हो, कस्टमर टिप भी दे रहा तो वो टिप हमें मिलता या नहीं मिलता, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता। चाहे फेयर का ट्रांसपेरेंसी भी कितने की बार हम लोग देखे होंगे, जब भी बिल ट्रांजैक्शन होता, इंश्योरेंस के नाम पे 1 रुपया 2 रुपए करते, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के फीस के ऊपर पैसे कटते, वो पैसा किसका है, किधर जा रहा, इसका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता। तो एक मैं बोलूंगा कि पहली एक मुबारक घड़ी है इस टाइम में जो राजस्थान में ये चीज में हम लोग ने देख रहे, और इसको इम्प्लीमेंटेशन करे बाद में अभी अगर जब कुछ चीजें हैं तो उसको हम रेटिफाई करते हुए अगले जो हमारे अभी बाबू मैथ्यू साहब ने कहा कि जब कर्नाटक जाएंगे, जब हैदराबाद जाएंगे, दूसरे जहां पे भी शहर में जाएंगे, उस सारे चीज को नजर में रखते हुए हम चीज को आगे लेके जाएंगे। और ये मौका दिया, बहुत बहुत आप सबका आभारी हूँ, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शेख जी। और ये बिल्कुल सही है कि लास्ट कमेंट ये भी दर्शाता है कि कितना और आगे मेहनत करने की जरूरत है। और मैं एक्चुअली सीधा स्पीकर से ही जो प्रश्न कुछ आए हैं उसके ऊपर थोड़ा एक आई थिंक अगले 10-15 मिनट हम जो जो जिस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हम थोड़ा समय बिता सकते हैं। पहला चीज लोगों ने पूछा है कि ये सेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये क्या प्राणी है, तो मैं उसको थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी उसी बात से जहाँ पे शेख जी ने खत्म की अपनी बात, कि ड्राइवर जब गाड़ी चलाते हैं तो कितना एक्चुअली कट रहा है, किस लिए कट रहा है, बार बार क्यों कट रहा है, किसके लिए जा रहा है, ये जो हर और इसी एक मतलब इसी चीज में जो बहुत सारी चीजें इसके पीछे छिपी रहती है, उससे वर्कर्स को कितनी तकलीफ रहती है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि कल उन्होंने 6 घंटे काम किए तो एक अलग रकम आई, आज उन्होंने 9 घंटे काम किए तो अलग रकम आई, सर्ज प्राइस के नाम पे कुछ कम हो रहा है, कुछ ज्यादा हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है और इसका खाता कहाँ है, कि कितना एक्चुअली कंपनी को गया, कितना एक्चुअली वर्कर को गया, कितना टैक्स में गया और कितना फी में आया और किसी और पेमेंट में गया, इसका पूरा खुला खाता सरकार और बोर्ड को तो जरूर दिखना चाहिए। आज के दिन हम जैसे बात कर रहे हैं कि हमें ये नहीं पता है, ये नहीं समझ आ रहा है, एग्रीगेटर्स को हर चीज बिल्कुल समझ में आ रहा है और दिख रहा है। उनको जरूर ये समझ में आ रहा है कि हर पेमेंट में 2 रुपए आशीष के कम किस लिए हुए, 3 रुपए शेख के इसलिए बढ़े। लेकिन दिक्कत ये है कि ये पूरा जो खाता और जो पूरा समझ है केवल एग्रीगेटर्स के पास है आज, और वो उसी को इस्तेमाल करते हुए कैसे वर्कर्स और वर्कर के राइट्स का शोषण कर रहे हैं, उस पे एक चेक लाने के लिए एक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो ये कहता है कि अगर ये कानून का क्रियान्वयन करना पड़ेगा
और हर ट्रांजैक्शन पे 2% हो या 1% हो, उसका एक सेस फी लगेगा, तो सरकार को पता कैसे चलेगा कि ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है? एक तो बात ये है। और दूसरा जो बात जानकी ने उठाई कि कंपनियां तो कहती है आज ये ओला में कर रहे हैं, 2 घंटे बाद ये उबर में कर रहे हैं, तो हम कैसे इसका पूरा देखते रहे? तो ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये भी एनेबल करता है कि क्योंकि हर वर्कर का एक आईडी होगा, तो वो वर्कर ने कहाँ काम किया और उसमें उसको कितना मिला और कंपनी को कितना मिला, उसका पूरा देखरेख बोर्ड और सरकार बिल्कुल देख सकती है और देखना चाहिए। तो ये केवल ये बात कह रही है कि जो सूचना और जो जानकारी आज एग्रीगेटर के पास है, वो जानकारी और सूचना कल कानून के साथ सरकार और बोर्ड के पास होना चाहिए। और अगला प्रश्न ये, आई जस्ट होप ये क्लैरिफाई करता है कि ये है क्या चीज और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। अगले प्रश्न से पहले, क्योंकि जरूरी है, लगभग 100 लोग जुड़े हैं, इसी मुद्दे से रिलेटेड ये जो बात बहुत संक्षेप में मैंने कहा भी था कि जब हम बात भी कर रहे हैं, लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हुआ है और हम में से सभी लोगों को ये एक्चुअली समझना चाहिए कि ये कानून क्या है। एक पूरा एक तकनीकी नाम दिया है और ऐसे लगता है कि ये पता नहीं कुछ हो रहा है और हम पे कोई ज्यादा असर या प्रभाव नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली जो लोग जुड़े हैं, जो रुचि रखते हैं और इस बात को जैसे सुनने के लिए आज इस चर्चा पे जुड़े हैं, और उसके साथ गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स और उनके यूनियंस जो जुड़े हैं आज, हमें बिल्कुल तुरंत ये समझना चाहिए कि ये कानून इतना एक बड़ा एक हथियार है सरकार के साथ, क्योंकि ये कहता है कि जो भी सूचना आज एक तो डिजिटल हो और जो पर्सनल हो, जिसका मतलब क्या है, पर्सनल सूचना क्या होगी, मेरा नाम होगा, मेरा अकाउंट होगा, मेरा फोन नंबर होगा, मैंने गाड़ी कहाँ से कहाँ चलाई वो सूचना हो, या मैंने किसने क्या ऑर्डर दिया वो सूचना हो, तो ये सारी पर्सनल सूचनाएं अभी सरकार कह रही है कि कौन इस्तेमाल करेगा या करेगी और किसके लिए इस्तेमाल करेगी, ये केवल एक कानून में जो सरकार की ताकत है कि वो तय करेगी कि कौन से लोग किस तरीके से इसका इस्तेमाल ठीक तरीके से कर रहे हैं, वो निर्णय लेगी। तो मैं बहुत इसका एक तकनीकी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ताकि इसका मूल चीज हम समझे। सरकार और जो चीज जो शेख जी हमेशा कहते रहते हैं कि ये तो मेरा डेटा है और मुझे ही ना दिखाए और मैं ही उसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊं, तो ये कंपनी क्यों ये डेटा मेरे से लेके उसका इस्तेमाल कर रही है? ये उसी भावना के बीच में एक प्रकार का हाव है और अटैक है। तो इसके लिए हमें ये लोकसभा में, शायद लोकसभा में पास हो गया है कानून, लेकिन इसके लिए हमें कैसे एक सिटीजन कैंपेन, एक वर्कर्स कैंपेन एस्टैब्लिश करना चाहिए, इस चीज के आगे क्रियान्वयन को कैसे रोका जाए और एक कैंपेन बनाया जाए कि ये सारे जो हम डेटा बोल रहे हैं ये हम सबकी व्यक्तिगत संपत्ति है, हम सबका डेटा है, हम सबके अधिकार के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और ये सरकार और कंपनियां केवल नहीं तय कर सकती कि ये डेटा किसके लिए इस्तेमाल करनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। तो ये भी मैं बात रखना चाहती थी क्योंकि जरूरी है और हमारा कर्तव्य है, इतने सारे लोग जुड़े हैं तो इसके बारे में थोड़ा बात रखने के लिए। दूसरा प्रश्न आया है और मैं बाकी के स्पीकर से भी अनुरोध करूंगी अगर वो इस पे रिस्पॉन्ड करें। एक उन्होंने कहा है कि ये केवल एग्रीगेटर्स या प्लेटफॉर्म ही ऐप क्यों बनाए, सरकार को भी एक ऐप बनाना चाहिए। तो इसका प्रश्न शायद आशीष, क्या आप इसमें रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। देखिए, बिल्कुल सरकार ऐप बनाने के लिए जो पहली दिशा थी, जैसा कि मैंने बताया कि पहली दिशा ऐप बनाने को लेकर ही चल रही थी, तो राजस्थान में डिजी फेस्ट जो ऑर्गेनाइज किया गया था, और उस ऐप का रक्षिता जी भी यहाँ पर मौजूद है। उस ऐप को बनाने में रक्षिता जी ने भी बहुत योगदान दिया है कि उसका ढांचा कैसा होना चाहिए। और मैं खुद ऑलरेडी एक ऐप रन कर चुका हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वदेशी टैक्सी, और मेरे को भी लगता है कि एक विकल्प होना चाहिए
ताकि कंपनियां जो 30-40% कमीशन ले रही है, क्योंकि यहाँ पर 2% सेस से जो भी पैसा आएगा वो कितना फायदा होगा कितना नहीं होगा, ये बहुत लंबी डिस्कशन है और उसमें बहुत भविष्य के अंदर ये लोगों को इस क्षेत्र में लोगों को प्रेजेंट थोड़ा चाहिए। तो ऐप को लेके यहाँ पर बात चल रही है और जैसे ये कानून के नियम बनेंगे, मैं भी सभी से निवेदन करूंगा कि ऐप बनाने को लेके, जैसा कि दिल्ली में पूछो ऐप बना है, केरला में सवारी ऐप बना है, लेकिन कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो राजस्थान में जिस प्रकार से कानून और बोर्ड की पहली दिशा यहाँ से बनी है, सक्सेसफुल ऐप एक विकल्प की, जैसा कि ओला, उबर, रैपिडो, जुगनू जैसा भी ऐप बने जिसके अंदर कैब ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, बाइक ड्राइवर ये चल पाए, और नेक्स्ट के अंदर चाहे स्विगी जोमेटो में रेस्टोरेंट लिस्ट हो और डिलीवरी बॉयज को भी बिजनेस मिल पाए या डिलीवरी बॉय पार्सल डिलीवर कर पाए, इस टाइप का ढांचा डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और DOIT को दिया गया है। और मैं रक्षिता जी से भी उस दिशा में थोड़ा सा चाहूंगा कि उस दिशा में हम और कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि वो काम तो किया है, लेकिन मैंने यही हमेशा बार बार बताया है कि वर्कर्स की डिमांड बहुत ज्यादा एक वैकल्पिक ऐप की रही है। जैसा निखिल सर ने भी बताया कि इसको कोऑपरेटिव बना के रन करने के लिए, लेकिन शायद हमारी उतनी ताकत अभी नहीं है, हमें बहुत ताकत अभी जुटानी है उन सारी चीजों को लेके। और राहुल गांधी जी को भी बताया था कि भाई अमूल जैसा मॉडल होना चाहिए जहाँ पर 36 लाख किसान अपनी मेहनत का मूल्य उचित पा रहे हैं, तो उस दिशा में भी काम होना। वर्कर्स की 90% वर्कर्स की वो डिमांड बहुत ज्यादा रही है और उस दिशा में काम चल रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि और सभी से, आप सभी से सामूहिक कुछ कार्य करके उस दिशा में भी हम आगे कुछ काम कर पाए, क्योंकि वो वर्कर्स ग्रुप की बहुत ज्यादा डिमांड रही है और वो उस वर्कर्स को ऐसा लगता है कि वो एक बेहतर विकल्प है, चाहे वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ कहीं भी इंडिया में, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं उसको सक्सेस, उसके लिए क्या हमें आवश्यक है, थोड़ा आप भी एक कानूनन दिशा, एक औपचारिक दिशा थोड़ा बताएं। शुक्रिया आशीष। और हाँ, ये बात की राजस्थान में कानून के पहले ये प्रॉमिस किया था कि सरकार भी एक ऐप लाएगी, तो उस पे आगे हम सबको काम करने की जरूरत है और उसको भी आगे बढ़ाने का। और साथ ही जो एक और प्रश्न आया है कि बोर्ड की प्रणाली क्या होगी, कैसे काम करेगी वगैरह वगैरह, ये अभी जो कानून पास होने के बाद, अभी नोटिफाई होने के बाद जो इसके रूल्स बनेंगे, जो वो मसौदा होगा जो कहेगा कि ये कानून कैसे चलेगी, उसको बनाने की तैयारी अभी शुरू होगी राजस्थान में। और उसमें भी आप सबका हमें मदद और सपोर्ट की जरूरत है, ताकि जो कानून में बहुत महत्वपूर्ण चीजें कही है उसको धरातल में लाने के लिए किस प्रकार की चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए और कितनी स्पष्टता से ये चीजें लिख देनी चाहिए, उस पे अभी एक अगला हमारे ऊपर हम सबका काम है और वो प्रक्रिया चालू होगी और उसमें भी हम सब जुड़े और सुझाव दें इसके लिए। थैंक यू। और कोई अगर कोई सवाल है? मुझे नहीं लगता और कोई किसी के सुझाव है, प्रश्न है। एक हेलो। हाँ हाँ जी, तो एक चेताराम जी ने एक भेजा था, अभी इस मुद्दे पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। ऑनलाइन खरीद, सप्लाई, ट्रैवल, खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी जगह मजबूत बढ़ रहे हैं, मुमड़त बढ़ रहे हैं, वाहन की गति बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, स्कूलों में बच्चों को रोकी कैरी करना मालूम नहीं कितना, परंतु काम तो करने की जरूरत है। कंपनियां तो कमा रही हैं और श्रम का दोहन हो रहा है। पारदर्शिता कैसे आएगी जो कि बहुत जरूरी है। चेताराम जी ने भेजा था। बिल्कुल, आई थिंक ये सोच है, लगभग सवाल नहीं है तो इसका उत्तर भी नहीं है, बट बहुत जरूरी बात रखी है चेतन जी ने। इसमें मैं एक चीज जोड़ सकता हूँ रक्षिता जी। हाँ आशीष। मैं इसमें ये चीज जोड़ना चाहूंगा, जैसा कि मैं अभी जो और एनालिसिस कर रहा हूँ, जैसा कि पहले भी जैसे अपवर्क है, फाइवर है, उसमें बैठा ऐप डेवलपर भी जो राजस्थान में काम कर रहा है, तो उनकी दिशा, या पोर्टर जैसी कंपनी है जो लोडिंग में है, वाहक करके एक सेटअप चल रहा है जो ट्रकिंग इंडस्ट्री के अंदर है,
और राजस्थान में ऑपरेट कर रहा है, तो गिग वर्कर काउंट हो रहा है। वैसे ही कुछ कृषि के भी गिग वर्कर के इंडस्ट्री बिल्ड हो रही है। और अभी एक प्रोजेक्ट हीरो करके लेबर कंट्रोलिंग, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसका भी एक ऐसा कुछ हो रहा है, जैसा कि अभी सीताराम जी ने कहा कि अन्य दिशाओं में भी ऐसा कार्य हो रहा है। तो मैं सभी वर्कर को भी निवेदन करूंगा कि अगर आप भी अगर ऐसे किसी वर्कर को जानते हैं कि वो डिजिटली किसी न किसी ऐप के थ्रू रन कर रहा है, तो उन्हें भी प्लीज जोड़ने का प्रयास करें। अगर वो गिग वर्कर इकोनॉमी में आ रहा है तो हम उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश जरूर करें। बिल्कुल। आशीष भाई, इसके अंदर मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ। जैसा BOCW में क्लियरली हम हैदराबाद में भी कोशिश करें, जो भी इलेक्ट्रिशियन है, अर्बन कंपनी में काम करते, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे मेस्त्री हो, या चाहे ये बोलते ना अपना प्लम्बर का काम करते हो, इन लोग को सबके लिए BOCW में भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, BOCW का कार्ड बना लिए तो वो भी बेनिफिट इन लोग को आता। अगर जो ऐसे लोग कोई है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, तो उनको आप अपने आईफैट एज ए एफिलेट आप उनको थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करिए कि उन लोग को वो बेनिफिट वहाँ पे मिल सकती, वो हैदराबाद में और मुंबई में भी मिल रही। बिल्कुल शेख जी, इसके अगर कोई ऑर्डर्स है तो प्लीज आप शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये जी। बहुत मदद होगा इसको और व्यापक तरीके से सभी जगहों पे बताने के लिए। थैंक मैं यू। आखिरी में एक हाँ बात बोल के खत्म करना चाह रहा हूँ। हाँ जैसे कि मैं भी वही सवाल पे देख रहा था कि आखिरी में मैं आप सबको एक बात बताना चाह रहा हूँ। अगर जब ये कानून के बारे में हम लोग चिंता कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो सरकार का भी जो इंटरेस्ट था, जो हम लोग रात करीब उसमें निखिल सर जी थे, रक्षिता जी थे, हम थे यूनियंस की तरफ से, और दूसरे यूनियंस भी रिप्रेजेंटेशन करे थे। CM साहब उस टाइम पे 9:30 से लेके रात के 11:30 12 बजे तक वर्कर्स की वॉइस, और एक तरफ से सामने 6 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज बैठ के उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करके इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश की। तो आप ये समझ नहीं सकते कि एक दिन, एक मिनट, एक रात में जो भी हो गया हो गया। मगर हाँ, इसके लिए जितना काम सोचो कि आप कितने रात दिन निखिल सर के और हमारे रक्षिता जी के उड़ गए इस काम में, क्योंकि जब ये बन रहा तो हर सवाल का जवाब हमारे पास रहना था। एक तरफ से कानून को हम लोग देख रहे थे, एक तरफ से वेलफेयर के बेनिफिट्स को देख रहे थे। ये एक एक्सरसाइज जो काम हम लोग ने किया, बहुत ही बोलते ना, और ग्राउंड के वर्कर से लेके किया हम लोग ने। ये ऐसा नहीं किया कि कोई व्हाइट कॉलर लीडर बोल दिए सुन लिए। हमारे आशीष भाई, इसके अंदर धर्मेंद्र भाई का योगदान उसके अंदर था कि बहुत सारे वर्कर्स को हम लोग ने उनकी वॉइस सुनी, उनकी तकलीफ सुनी, उनकी परेशानी सुनी। चाहे वो ओला उबर की ड्राइवर हो, चाहे वो स्विगी जोमेटो के हो, चाहे वो पोर्टर के हो, चाहे वो अर्बन कंपनी के हो, ये सारे जनों का बात सुने बाद में हम जब सरकार के पास जाके बातचीत कर रहे थे, इनका निचोड़ निकाल के इनके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है इस कानून के अंदर, उसके ऊपर एक पहली पहल थी ये। और उसके अंदर हम लोग ने अभी बोला ना, फूल नहीं फूल की पत्ती सही, कुछ हासिल किया। हम जरूर इस चीज के ऊपर अगले आने वाले दिनों में, जैसा अभी रक्षिता जी ने कहा, कि नेशनल कैंपेनिंग भी करेंगे, स्टेट्स वाइज भी हम लोग इसको कैंपेनिंग करेंगे। चाहे वो इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हो, चाहे वो तेलंगाना गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो, चाहे हमारे धर्मेंद्र भाई और आशीष भाई, जितने भी सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, हम सब अपने क्षेत्र में इसके ऊपर कैंपेनिंग करना, आवाज उठाना और सरकार पे प्रेशर बनाने की सबसे अहम जरूरत आज के तारीख में है। बस, शुक्रिया। शुक्रिया सभी का, और ऑल्सो शुक्रिया रक्षिता जी का, जिन्होंने इतना सुंदर फैसिलिटेट और मॉडरेट किया इस चर्चा को। मैं सभी स्पीकर्स से भी धन्यवाद कहना चाहूंगी कि वो अपना वक्त निकाल कर आए और हमारे साथ ये नॉलेज शेयर किया और ये डिस्कशन को इतना एनरिचिंग बनाया। और सभी का जो अपने सवाल पूछ रहे थे, जो सुन रहे हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में इन्हीं विषयों पर काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने भी पूरा सत्र नहीं देखा और नहीं देख पाए, तो इसकी पूरी रिकॉर्डिंग जन आवाज और विकल्प संगम की YouTube चैनल्स पर अवेलेबल होंगी।
मैं वेबसाइट्स चैट में डाल रही हूँ और आशा है कि हम फिर से ऐसी चर्चाओं में भाग लेते रहे और ये नॉलेज शेयर करते रहे। एंड इसी के साथ हम क्लोज करना चाहेंगे। धन्यवाद। Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you.